ہماری نصیحت کو کچھ نصیحت کر دے، مگر ہمارے مانگ کو وہ ادھورا نہیں رکھے، ہماری چاہت کو وہ ادھورا نہیں رکھے، اپنی طاقت کے مطابق وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے رہا کرتے تھے۔ جب ہم بچپن میں تھے تو ہم نے شہزادہ غوث اعظم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اسی طریقے کے نئے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جی کے جسم کو ایک کپڑا بھی باقی نہیں رکھا گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، علی علی، غوث اعظم، حضرت اعلی حضرت شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم سید عبدال میاں صاحب قبلہ، سید عبدال میاں صاحب قبلہ، سید عبدال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، علم اہل سنت، علم اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھ جائیں، خاموشی کا ماحول بنائیں، اپنی اپنی رضا صاحب آئیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اور ہمارے ماشاءاللہ سید عبدالعلیم صاحب جو پوسط کی سرزمین سے الحمدللہ ہمارے دیار میں پہنچے ہیں، تو ان کی گلپوشی بھی ہمارے خطیب و امام حافظ قاری محمد ریحان رضا صاحب فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ علماء کرام بالخصوص گرامی قدر مولانا حافظ ریحان صاحب سلمہ، دیگر علماء کرام، عظیم اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی فتح لأولیائہ ابواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل، فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل، ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل، ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل، والصلاة والسلام على نور الوحي
الوحدانية وطلعت شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم دم گشاہ اسد اللہ قطب عالم می زنم ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اور شریف کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी कायनात को इसीलिए पैदा फरमाया कि उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को इस सारी कायनात में उजागर किया जाए, आपकी अज़मत व रिफ़अत को बताया जाए, आपके मकाम व मनसब को बताया जाए। हदीस मुबारका में इरशाद हुआ, खलक़्तुल खल्क़ा लिउअर्रिफ़हुम करामतका व मंज़िलतका इंदी लौलाका लमा खलक़तुद दुनिया। ऐ मेरे हबीब, मैंने सारी मखलूक को इसीलिए पैदा फरमाया ताकि सारी मखलूक को दिखा दूं कि कितना बुलंद व बाला मर्तबा आपका मेरे पास है। अगर ये मकसूद न होता तो मैं कायनात को, दुनिया को पैदा ही नहीं फरमाता। रब ताला ने ये अजीम कायनात को पैदा फरमाया है तो उसके हबीब की शान व अज़मत को उजागर करने पैदा फरमाया। और इंसान और जिन को पैदा फरमाया तो रब ताला ने ऐलान फरमाया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन को मेरी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया, यानी रब ताला की इबादत ही के लिए पैदा किया गया है। इंसान और जिन के लिए ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि उसी की इबादत की जाए, उसी को खुदा माना जाए, उसके सिवा किसी को लायक इबादत न जाना जाए, उसी की इबादत करते रहे, उसी के अहकाम पर चलते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन की नेमत से माला माल फरमाया, ईमान की दौलत से माला माल फरमाया और हमें ये नेमत सिखाने वाले, बताने वाले, हमें सुनाने वाले कलमे को पढ़ करके माँ बाप अता फरमाया। अगर माँ बाप न मिलते ईमान वाले तो हम कहाँ होते, हमारा कोई ठिकाना न होता। अल्लाह ने हमें माँ बाप की जो नेमत अता फरमाई है वो ऐसी नेमत है कि जिसका कोई सानी नहीं है। दुनिया में इंसान को अल्लाह और उसके रसूल के तरफ से मिलने वाली नेमतों में अजीम नेमत इंसान के लिए उसके माँ बाप हैं। और ये नेमत हमारे लिए अल्लाह ने ऐसे अता फरमाई, ऐसी नेमत से इस नेमत को जोड़ दिया कि जिस नेमत की हम दुनिया में कभी भी उसकी शुक्रगुजारी का हक़ अदा कर ही नहीं सकते। दौलत ईमान का मिलना हमारे माँ बाप के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुतय्यन फरमा दिया, ख़ास फरमा दिया। ये नेमत हमें मिली है कि ज़िंदगी इससे हमारी बहारों की तरफ बढ़ती है, खुदा की रहमत की तरफ बढ़ती है। ये नेमत माँ बाप के ज़रिए अता फरमाई गई है और ये नेमत की वजह से और जिनके ज़रिए मिली है वो हमारे लिए इस कदर अज़मत वाले हैं, इस कदर मर्तबे वाले हैं कि तादम ज़ीस्त हम उनके शुक्रगुजार होकर के भी ज़िंदगी गुजारे तब भी उसका हक़ अदा न हो। परवरिश का हक़ तो अलग है, औलाद की देखभाल का हक़ तो अलग है, पैदा करने का हक़ तो अलग है, पढ़ाने लिखाने का हक़ तो अलग है, खिलाने पिलाने का हक़ तो अलग है, उनकी ज़िंदगी को संवारने का हक़ तो अलग है। इन तमाम हक़ से जुदा, इन तमाम हक़ से सबसे बड़ा हक़ जो उनका है उनकी कदर करने का हम पर कि उन्होंने हमें कलमा पढ़ने वाला बनाया, ईमान वाला बनाया, ईमान के रास्ते पर चलने वाला बनाया। अज़ीज़ान महतरम, हमें अंदाज़ा नहीं है कि इस दौलत ईमान की हिफाजत के लिए किस कदर जुल्म और सितम को बर्दाश्त किया गया है। हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। हमें तो बग़ैर मेहनत के ये नेमत मिल चुकी है। हमें तो किसी ख़ानदान से झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, किसी इलाके के असर रसूख रखने वालों से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम ज़बान से क्या कलमा पढ़ते हैं उस पर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक ज़माना वो भी था कि ग़ुलामी का ज़माना गुजरा करता था, मालिकों का नौकरों पर हुक्म चलता था, ताकत वालों का
कमजोरों पर हुक्म चलता था, दबदबा चलता था, असर और रसूख था, जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म था। जिधर देखो उधर जुल्म करने वाला ही ताकत वाला ही माना जाता, और जुल्म जिसका जिस कदर होता लोग उससे उस कदर डरने वाले होते। ऐसे जुल्म के माहौल में अगर हक्कानियत की सदा को किसी ने बुलंद फरमाया है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलंद फरमाया है। लोगों को इंसाफ दिलाने की सदा अगर किसी ने बुलंद की है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलंद की है। औरतों के हुकूक को औरतों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अगर किसी ने उठाई है तो मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई है। बच्चियों की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी अगर किसी ने सुनाई है, सिखाई है, बताई है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। जो पैगाम को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया उस पैगाम को मानने वालों पर इस कदर जुल्म किया गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखें, हजरत खब्बाब को देखें और भी दीगर सहाबा किराम को देखें, किस कदर उन पर जुल्म किया गया अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। हजरत ज़ैद को देखें और भी किस कदर सहाबा किराम हैं, किस कदर सहाबा किराम हैं कि जिन पर जुल्म और सितम का बाजार किया गया, गर्म किया गया, सताया गया, रुलाया गया और उनको मारा गया, पीटा गया, मगर उन्होंने उस दौलत की हिफाजत की है जो खुदा ने उन्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अता फरमा दी है। वो कलमे को उन्होंने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दावत को जब उन्होंने कबूल कर लिया तो जुल्म किस तरीके से किए गए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात गिरामी, इस कदर जुल्म किया जाता था, इस कदर जुल्म किया जाता था कि शायद कि जुल्म भी वहां पर खड़े होकर के उस कारनामे को देख करके पनाह मांगता होगा, जुल्म भी धरतरा जाता होगा, डर के काम जाता होगा कि भला क्या जुल्म का ये माना है, भला क्या जुल्म ऐसे किया जाता होगा, जुल्म भी थरथरा जाए। इस कदर जुल्म और ज्यादती की जाती थी। आपको तपते हुए सहराओं में, तपते हुए रेगदारों में बच्चों के हाथों में कपड़ा दामन थमा दिया जाता, आपके गले में डाल दिया जाता और बच्चों के हवाले कर दिया जाता। बच्चे उन्हें खींचा करते थे, सीने पर वजनी पत्थरों को रख दिया जाता था, नंगी पीठ से जमीन पर लिटा दिया जाता था और गले में रस्सी या कपड़ा डाल करके बच्चे खींचा करते थे, गली कूचों में, बाजारों में खींचा करते थे। मुतालबा क्या होता था? यही एक मुतालबा होता था, कलमा ईमान का जो तुमने पढ़ लिया है उस कलमे को छोड़ देना, उस ईमान को छोड़ देना। मगर कुर्बान जाएं उस आशिक़े मुस्तफा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारका पर उन्होंने अपने आप पर कोड़े बरसना पसंद कर लिया, उन्होंने अपने आप को आग में जलाया जाना पसंद कर लिया, उन्होंने अपने आप को धूप की तपते हुए रेतदारों में तड़पाया जाना पसंद कर लिया, बच्चों के हाथों खिलौना बन करके जख्मी होना उन्होंने पसंद कर लिया, अपने आप पर न जाने कितनी आफतों को उन्होंने पसंद कर लिया। मगर उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि ईमान का सौदा कर लिया जाए, उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कहना छोड़ दिया जाए, मोहम्मद अरबी की दावत को छोड़ दिया जाए, इसको उन्होंने पसंद नहीं किया। हाल ये हुआ कि जुल्म की इंतहा होती चली गई, इतना जुल्म होता कि आप बेहोश हो जाया करते थे। जब भी आप होश में आते फिर वही दास्तान शुरू से दोहराई जाती, बेहोश हो जाते तो लोग छोड़ के चले जाते। मगर उस आशिक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखे, हबशी होकर के भी मोमिनों की अजीम इज्जत और शान के मर्तबे पर फाइज फरमाया गया। उनकी कुर्बानियों को क़यामत तक के न बुलाया जाएगा। हमारे वो सरदार बनाए गए, हमारे आंखों के तारे बनाए गए, उनके अखलाक और किरदार हमारे लिए हौसला व हिम्मत का जरिया बनाए गए। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान की दौलत को जो हिफाजत करना है, जान जाए तो बला से 1000 मर्तबा जान मिल जाए तो 1000 मर्तबा कुर्बान कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर ईमान की हिफाजत ऐसी होनी चाहिए कि ईमान के लिए सब कुछ कुर्बान है, ईमान पर किसी का सौदा नहीं किया जाएगा, ईमान के लिए जान का सौदा किया जाएगा। और मोमिनों की तो शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि मोमिनों की जानों को अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया है, जन्नत के बदले में उन्हें जन्नत अता फरमाई जाने वाली है। मोमिन कौन है? जो ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले, उसके रसूलों पर ईमान रखने वाले, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने वाले, शरीयत मुतहरा पर चलने वाले हैं और अल्लाह के नबी को, मोहम्मद अरबी को आखिरी नबी मानने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई है। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या याद आ रहा है। हाल क्या हुआ करता था, आप पेशे से लोहार थे,
लोहे का काम करते थे, भट्टी जला करके कुल्हाड़े वगैरह बनाया करते थे, खेतों के सामान तैयार किया करते थे, मगर आपके साथ जुल्म किया जाता था। आपने इस्लाम कबूल कर लिया था, आपने कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ लिया था, खुदा को एक मान लिया था और खुदा के दीन को अपना लिया था। जुल्म करने वाले इस कदर जुल्म करते कि जब भट्टी खूब दहक जाती, जब कोयले दहक जाते कि जिससे लोहा पिघल जाए, लोहा नरम हो जाए, उस कदर जब उसमें गर्मी पैदा हो जाती, उस वक्त पर पास पड़ोस के लोग आ जाते और आपसे मुतालबा करते कि कलमा पढ़ना छोड़ दो, कलमे को छोड़ दो, मगर वो कहते कि नहीं नहीं, मैंने कलमा छोड़ने के लिए कलमे को नहीं पढ़ा है, मैंने दीन को छोड़ने के लिए दीन को नहीं अपनाया है, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ मगर दीन का सौदा नहीं कर सकता। जब ये जवाब उससे सुनते तो गुस्से में आ जाते, मारते पीटते, ज़ूद खूब करते, जुल्म ज्यादती करते। इंतहा ये होती कि उस अंगारों को जमीन पर फैला देते और आपको पकड़ करके जमीन पर लेटा देते थे। उन अंगारों पर लेटा दिया जाता था और आपके सीने पर लोहे के वजनी चीजों को रख दिया जाता था कि जिसे आप हटा न सके। नीचे से दहकते अंगारे हैं, वो जला रहे हैं और सीने पर वजन है इतना कि उसको उठाया ना जा सके, उसको हिलाया ना जा सके। इंसानी ताकत जवाब दे जाती है मगर मोमिन के ईमान की ताकत उस वक्त पर भी सलामत रहती है और अपनी ज़बान से वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। यहाँ तक कि हाल ये होता कि आप बेहोश हो जाया करते थे और आपकी जिस्म मुबारक से चर्बी, खून, पानी जो जिस्म में होता था वो पिघल पिघल करके निकल करके अंगारों को बुझा देता। उसी हाल में कोई आपका चाहने वाला, कोई आप पर तरस खाने वाला आकर के हटा देता। ये एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, हजारों मर्तबा का मामला लोगों के साथ इस तरीके के जुल्म और इज़ा का मामला था। एक मर्तबा एक वक्त वो भी आया कि जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर रौनक बख्शे हुए हैं, आप सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सामने रख करके इनके इज़ार कुर्बानी को बताया करते थे। अक्सर आप इनको अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में खास बुलाया करते थे और इरशाद फरमाया करते थे, जरा अपनी पीठ से वो कपड़ा तो हटा दो, मैं देख लूं कि उस पीठ ने इस्लाम के लिए कितने जुल्म को बर्दाश्त किया है। और आप उसे देखते, आंसू बहाते, कितने आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन के, ईमान के बचाने की कीमत हमारे बुजुर्गों ने अता फरमाई है, सहाबा व अहले बैत ने अता फरमाई है, हक़ानियत को बचाने की कीमत उन्होंने चुकाई है। ऐसी किसी कीमत को चुकाना आज हमें मयस्सर नहीं है, ऐसी कोई आज हमारे लिए मुसीबत और परेशानी नहीं है। वो अजीम नेमत जो हमारे बदन पर चूंटी भी नहीं चलती है, एक चूंटी भी हमसे मुतालबा नहीं कर सकती है कि हमने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया है। ये हाल शान और शौकत का हमें अल्लाह ने अता फरमाया है। मगर उस जमाने में ये था कि गली कूचे के छोटे छोटे बच्चे भी बाग फुरुस करने के लिए तैयार रहते थे, जुल्म से उनको सताने के लिए तैयार रहते थे। कोई पत्थर मारा करता है, कोई कांटे चुभोया करता है, तो कोई कोड़े बरसाया करता है, कोई खींचा करता था, तो कोई किसी तरीके से सताया करता था। आज वो वक्त नहीं है, आज वो जमाना नहीं है। मगर आज क्या हमने उस दीन की हिफाजत करना सीख लिया है कि आज हमारा ये फर्ज नहीं है, जुल्म हो तभी हिफाजत की जाएगी, तकलीफ हो तभी हिफाजत की जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जुल्म हो तब भी दीन पर कायम रहना है, ना हो तब भी दीन पर कायम रहना है। हर हाल में दीन पर ही कायम रहना है, हर हाल में ईमान पर ही सलामती रखनी है। ईमान सलामत तो सब कुछ सलामत होने वाला है। ये नेमत जो हमें मिली है, माँ बाप ने अता फरमाया है। और आज हमारा सुलूक क्या है, अल्लाह का दीन क्या कहता है, रसूलुल्लाह का दीन हमें क्या कहता है। अल्लाह से खौफ करने का हुक्म हमें देता है, रसूलुल्लाह के अहकाम पर, उनके तरीके पर चलने का हमें हुक्म देता है। क्या हमने अपने दिलों का मुहासबा किया, क्या हमने अपने दिलों का अंदाजा लगाया कि हमारे दिल में क्या खौफ खुदा बसा हुआ है, खुदा का डर कितना हमारे दिलों में बसा हुआ है। क्या कभी हमने सोचा हमारे माल लुट जाने का डर हमारे दिल में है, हमारे फोन छिन जाने के, चोरी हो जाने का डर हमारे पास है, हमारे बिस्तर लुट जाने का, बिस्तर छिन जाने का, जमीन छिन जाने का, हर कोई डर हमारे पास है? नहीं है तो अफसोस की बात है माज़अल्लाह कि हमारे दिलों में खुदा का खौफ नहीं है, हमारे दिलों में रसूलुल्लाह की चाहत और मोहब्बत नहीं है। आखिर किस फायदे की जिंदगी है? उन लोगों ने तो रसूलुल्लाह का मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाया, खुदा के खौफ को दिल में बसाया, तो ऐसे कामयाब हो गए कि क़यामत तक ईमान वालों के पेशवा और सरदार बना दिया गया, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला कामयाब और कामरान बना दिया गया। अस्हाबी का नुजूम भी आई मक़्तदाई तो महतदाई तुम फरमाया गया, मेरे सहाबा सितारों
की मानिंद है, तुम में से जो जिसकी पैरवी करेगा नजात पा जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। आखिर उनको इतना मकाम क्यों है? उन्होंने खौफ खुदा को दिल में बसाया, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में बसाया। और आज हमारे पास ये हाल है कि जिन माँ बाप के सदक़े में, जिन माँ बाप की तरबियत, जिन माँ बाप की कोख और सुल्ब की बरकत से, उनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ईमान अता फरमा दिया है, हमें मुसलमान बना दिया है, बगैर मेहनत के हमें दीन मिल चुका है। आज उनके साथ हमारा सुलूक क्या हो रहा है, हमारी बदसलूकी क्या हो रही है। एक वाकया मैं आप हजरात को बताऊंगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाकये के रावी है। इमाम तबरानी ने इस वाकये को तबरानी शरीफ में रिवायत फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आते हैं, आकर के अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद मेरे माल को ले लेते हैं, जो कुछ मेरे पैसे हैं वो ले लेते हैं, मेरी जरूरतें रह जाती हैं या मेरी परेशानी रह जाती हैं, ये सब बात की है। बात यह है कि वो मेरे माल को ले लेते हैं, मेरे माल पर वो तसर्रुफ कर लेते हैं, वो इख्तियार चलाते हैं। और आज भी मामला देखें, हमारे भी दिल दुखते हैं कि नहीं दुखते हैं। हमारे माँ बाप कुछ हमारे पैसों से ले लेते हैं तो हमारे माथे पर शिकन आ जाते हैं, दिल छोटे हो जाते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम बोलते थे, मांगते थे, हाथ फैलाते थे, उनके दामन को पकड़ करके खींचते थे, उनके जेब में पैसे ना भी होते तो किसी न किसी तरीके से वो हमारी जरूरत को पूरा कर दिया करते थे। आज मांगा तो फिर शाम में मांगने से मना नहीं करते, कुछ देर के बाद मांगने से मना नहीं करते। अगरचे हमारी नसीहत को कुछ नसीहत कर दे, मगर हमारे मांग को वो अधूरा नहीं रखते, हमारी चाहत को वो अधूरा नहीं रखते। अपनी ताकत के मुताबिक वो हमारी जरूरतों को पूरा करते रहा करते थे। जब हम बचपन में थे तो हमने बड़ी चाहत से उनके माल को मांगा था, बड़ी चाहत से, बड़े हक से हमने उनके माल का इस्तेमाल किया था, उनके जेब से हमने पैसे बता बता करके, तलब तलब करके हमने लिया था। उनकी न जाने कितनी जरूरतों को उन्होंने कुर्बान कर दिया, कितनी ख्वाहिशों को उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ हमारे चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इसके लिए उन्होंने धूप छांव, सर्दी गर्मी, बारिश सर्दी सबको बर्दाश्त किया। आज जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप की कोई जरूरत को पूरे करने की बात आती है तो बेटों का हाल यह होता है कि वो बेटे से पूछ लो, वो बेटे से पूछ लो, वो बेटे से पूछ लो, वो नहीं देता है तो मैं क्यों दूं, मैं देना क्या जरूरी है, उसको भी तो देना चाहिए। ये सोच हमारे ज़हन फिक्र में आ जाती है। अफसोस की बात है बचपन में ये सब क्यों नहीं आया कि आखिर अब्बा ही हमारी सारी जरूरतों को पूरा क्यों करे, आखिर अम्मी ही हमारी जरूरतों को पूरा क्यों करे, रास्ते में जाने आने वालों से क्यों ना मांगा जाए। उस वक्त पर हमने उसका ख्याल नहीं किया। हमें मालूम था कि हमारा हक हमारे माँ बाप के साथ है और हमारे माँ बाप का हक हम पर है। ये फितरत में अल्लाह ताला ने बचपन में ही दे दिया था। मगर जब जवानी के आलम में कदम बढ़ाते जाते हैं तो एक फितरत के खिलाफ हम शैतानी वसवसों के साथ अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मगर अफसोस के वाकया हमारी नसीहत के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी आकर के शिकायत करते हैं कि मेरे वालिद मेरे माल में से तसर्रुफ करते हैं, मेरा माल वो ले लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, जितना मन चाहता है ले लेते हैं, जो जी चाहता है ले लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ अपने अब्बा को मेरे पास लेकर के आओ। सारी दुनिया को इंसाफ देने वाली हस्ती, उनसे ज्यादा इंसाफ अल्लाह की मखलूक में कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे इंसाफ करने वाले हैं जब माँ की गोद में आए हैं तभी से इंसाफ करते दिखाते नजर आ रहे हैं। हजरत बीबी हलीमा की गोद में आए हैं, आप दूध पी रहे हैं, एक तरफ दूध पीते हैं, एक तरफ रजाई भाई के लिए छोड़ देते हैं। आपने जितना अरसा दूध पिया उतना अरसा अपने रजाई भाई के हक का ख्याल किया और एक ही तरफ से आप दूध पीते रहे, दूसरी तरफ से कभी आपने दूध नहीं पिया। ये वो हंसी है जो माँ की गोद में लोगों को इंसाफ करना और रिश्तेदारी का लिहाज करना और उनके हुकूक को अदा करना सिखाने वाली हंसी है। वो इंसाफ करने वाले हैं, उनकी बारगाह में ये इंसाफ के तलबगार बनकर के आए हैं। रसूलुल्लाह ने जब उन्हें बुलाया, बाप के दिल में एक धचका लगता है, आह इसको मैंने गोद में खिला करके बड़ा किया है, आह मैंने इसको अपने हाथों में संभाल करके बड़ा किया है। आज ये एक छोटी सी चीज के लिए मैंने कुछ पैसे उसके ले लिए, कुछ माल उसका ले लिया, तो दौड़ा दौड़ा जाकर के रसूलुल्लाह से मेरी शिकायत कर रहा है। दिल दुख जाता है, आज़ुर्दा हो जाते हैं। दिल में कुछ अशआर वो पढ़ते हैं, जबान पर भी नहीं लाते हैं, उनके कान भी उस अशआर को उनके जबान
زبان کے الفاظ سے نہیں سنتے ہیں، دل میں وہ اشعار پڑھتے ہیں۔ عرب کی سرزمین میں، عرب کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر و سخن اور فصاحت و بلاغت کو بسا دیا ہے۔ ان کو محنت کر کے شعر و شاعری سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شعر و شاعری ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی شعر و شاعری ہوتے ہیں۔ وہ جو ضابطہ ہے، آج جو بحریں بیان کی جاتی ہیں، یہ بحریں لوگوں نے ان کے فصاحت و بلاغت سے اخذ کر کے اس کا نتیجہ نکالا ہے، ورنہ تو اصل شعر و ادب کی جو جان ہے وہ کلام عرب ہے، عرب کا کلام ہی اس کا ضابطہ ہے، اس سے جدا دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس ضابطے کو سمجھنے کے لیے اجمی لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بحروں کا وجود ہوا۔ علامہ خلیل وغیرہ نے اس کو جو ہے اس فن کی محنت کی اور اس کو انہوں نے بیان کیا، تو آج دنیا میں یہ فن مشہور و متعارف ہے، مگر یہ فن اخذ ہے تو کلام عرب سے اخذ شدہ ہے، کلام عرب سے ہی لیا ہوا ہے۔ وہ زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہے اور ان کے صحابہ ہیں تو کس قدر فصیح و بلیغ ہوں گے، ہمارا اور آپ کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ زبان سے نہیں، دل ہی دل میں انہوں نے چند اشعار کہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آزردگی کے ساتھ آئے۔ جب وہ آزردہ خاطر ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ نے پوچھا، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر کے میرے پاس آیا ہے، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر کے میرے پاس آیا ہے کہ تم اس کے مال سے مال لے لیا کرتے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اس سے پوچھے تو صحیح، اس کے مال کو میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ ایک اپنے آپ پر خرچ کرتا ہوں، ایک اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، ایک اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ میری پھوپھی، میری بہن اور اس کی ماں کی بہن، ان کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے، میں ہوں، میں اپنے آپ پر خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں، اس سے ہٹ کر کے میں کہیں اس کے مال کو خرچ ہی نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مگر اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کے وہ اشعار سماعت فرما لیں جس کو اس کے کانوں نے ابھی تک نہیں سنا۔ ہمارا رب بے شک ہمارے دل کی خبر رکھنے والا، ہمارے دل کے حال کو سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا۔ دل کی آہ جو کہاوت ہے، زبان پر آہ آنے سے پہلے دل میں آہ بنتی ہے، اس کو بھی رب تعالیٰ سن لیتا ہے، قبول بھی کر لیتا ہے۔ دل کی آہ لینے سے بچے، ماں باپ کی دل آزاری سے بچے۔ ماں باپ کی دل آزاری خدا و رسول کو پسند نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ماں باپ کی دل آزاری پر جو آہ نکلتی ہے، عرش بھی لرزنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہونے والی دعا ماں باپ کی ہوتی ہے، جو بغیر کسی حجاب کے قبول کر لی جاتی ہے۔ جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو ان کی دل آزاری کی جو آزردگی کی آہ ہوگی، وہ آہ کا بھی کیا حال ہوگا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا اور حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہمارے یقین کو روز بروز بڑھاتا ہی ہے، روز بروز زیادہ کرتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو صرف میں نے اپنے دل میں کہی تھی، زبان پر نہیں لایا تھا، مگر میرے دل نے جس بات کو کہی تھی اس کو آپ نے جان لیا، آپ اس کو ہم سے سوال فرما رہے ہیں۔ ہمارا رب آپ پر ہمارے یقین کو مضبوط سے مضبوط فرما رہا ہے اور زیادہ فرما رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے دل میں کہا تھا، اشعار کا مفہوم ہے کہ اے میرے بیٹے، جب تو چھوٹا سا تھا، ہلنے جلنے کی تیرے پاس طاقت و صلاحیت نہیں تھی، میں نے تجھے کھلایا پلایا، یہاں تک کہ تجھے گبرو جوان کر دیا، بڑا ہو گیا، اس وقت تک کہ میں نے تیرا خیال رکھا، اس امید پر کہ تو میرا سہارا بنے گا۔ اور جب رات کو تو بچپن میں بیمار ہو جاتا تھا، میں بے چین ہو جاتا تھا اور تیرے مرنے کے ڈر سے میں ڈر جایا کرتا تھا، جبکہ مجھے خوب معلوم ہے موت کا ایک وقت ہے، وہ جب آنی ہے تبھی آئے گی، نہ اس سے پہلے آنی ہے نہ اس کے بعد آنی ہے، مجھے معلوم تھا، مگر پھر بھی میں تیرے لیے ڈر جایا کرتا تھا۔ گلی گلی رات رات بھر میں تجھے تیرے علاج کے لیے لے کر کے کاندھے پر گھوما کرتا تھا، تجھے تھپکی دے دے کر کے سلایا کرتا تھا، رات بھر جاگ کر کے میں گزار دیا کرتا تھا، اور میں نے تیرے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ ایسا حسن سلوک کیا کہ تجھے کوئی اور میرے سوا کر نہیں سکتا۔ مگر کیا تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟
कम से कम बाप होने का हक अदा न कर सके तो कम से कम पड़ोसी होने का तो हक अदा कर देता, पड़ोसी की तरह तो हक अदा कर देता। क्या हमारा उतना भी हक नहीं कि पड़ोसी की तरह मैं तेरे साथ रह सकूं? जब भी तू मुझसे बात करता है, गुस्से की बात करता है और बदसलूकी के साथ यानी बदजबानी के साथ तेरा लबो लहजा होता है, दिल आजारी वाला लबो लहजा होता है, क्या मैं इसी का मुस्तहिक हूँ? क्या इसीलिए मैंने तुझे इतनी दिन तक के मेहनत करके पाला था? ये दिल का दर्द जब उन्होंने अपने जबान से बयान फरमाया, देखने वालों ने देखा कि रसूलुल्लाह की आंख से आंसू जारी हैं और उसके बेटे को पकड़ करके रसूलुल्लाह बता रहे हैं, सुन, तू और तेरा माल तेरे बाप की मिल्कियत है, तू और तेरा माल तेरे बाप का हक है, तेरे बाप का हक है तुझ पर, तेरे माल पर तेरे बाप का हक है। ये बयान फरमाया, रसूलुल्लाह ने बता दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, कि आज हमारे अखलाक और किरदार को देखें, क्या हमने अपने अंदर तो कहीं ऐसे अखलाक तो नहीं लाए हैं कि जिससे माँ बाप की दिल आजारी हो जाए? और माँ बाप जब दिल आजार कर लेते हैं, वो दिल उनके दुख जाते हैं, तो याद रखें कि रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाएंगे, रसूलुल्लाह को भी इससे तकलीफ पहुंचेगी। अब अगर रसूलुल्लाह नाराज हो जाए तो कौन है खुदा की रहमत से बचाने वाला? वो कौन है खुदा की रहमत दिलाने वाला? कौन है खुदा की गज़ब से बचाने वाला? सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नहीं है। खुदा की रहमत दिलाने वाले भी वही हैं, खुदा के गज़ब से बचाने वाले भी वही हैं, खुदा के कहर और अज़ाब से बचाने वाले भी वही हैं, वही हमारी शफ़ाअत करने वाले हैं। जब हम उनको नाराज कर देंगे तो कहाँ हमारा फुरसान हाल होना है? कौन हमारा फुरसान हाल होगा? कहाँ हमारा ठिकाना होना है? ये हमारे अंदाजे से बाहर चीज है। आज की जो जिंदगी हम गुजारें, उस जिंदगी पर सोचें कि हमारी जिंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं। क्या हमारे ज़हन और फिक्र में खौफ खुदा बसा हुआ है? क्या रब ताला के डर को हमने अपने दिल में बसाया है? आखिर किस फायदे की ये जिंदगी जो जिंदगी हम जी रहे हैं? हम अपने दिलों को देखें, हमने अपना ताल्लुक रब ताला से कितना बनाया है। हमने अपने दिल को देखें कि हमने अपने दिल में अनवार और तजल्लियात को कितना बसाया है। क्या कभी हमने अपने दिल को झांक करके छान करके देखना चाहा कि इस दिल में कितने नूर बसा हुआ है? कभी क्या हमने जिक्र के साथ अपने दिल को मुनव्वर करने की कोशिश की है? कभी क्या हमने खौफ खुदा से अपने दिल को रोशन करने की कोशिश की है? अफसोस की बात है कि हमने अपनी निगाहों को नहीं बचाया, हमने अपने अखलाक को नहीं बचाया, अपने किरदार को नहीं संवारा, बल्कि हमारी जिंदगी तो गुनाहों के दलदल में धंसती चली जा रही है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या याद आता है कि आप एक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और आप एक तालाब के पास बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके एक शागिर्द और आपके एक मुरीद भी बैठे हुए हैं। अचानक आप देखते हैं तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा काला बिच्छू आकर के खड़े हो जाता है। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक कूद करके बाहर किनारे पर आ जाता है और वो बिच्छू उस मेंढक की पीठ पर सवार हो जाता है और वो मेंढक फिर पानी में तैरता हुआ तालाब के इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचने लगता है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया कि को हो न हो, इस मामले के कुछ बड़ी शान है, इस मामले का कुछ बड़ा राज जाहिर होने वाला है। चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या मामला रूनुमा होने वाला है। क्या जरूरत थी कि पानी से मेंढक आए और इस बिच्छू को अपने पीठ पर सवार करके पानी को पार कराए? मामला कुछ न कुछ अजीब होने वाला है। इस मामले को देखने के लिए चलते हैं। जब उस मामले को देखने के लिए उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, उसको तलाश करते हुए पहुंच जाते हैं, तो क्या देखते हैं? एक बाग की तरफ वो मेंढक अपने पीठ पर उस बिच्छू को लेकर के चला जा रहा है। जब वहां पर पहुंच जाता है, जब वहां आप देखते हैं एक शराब के नशे में धुत एक शख्स सोया हुआ है और उसके पैरों से होता हुआ उसके सीने तक के एक जहरीला सांप चढ़ा हुआ है। अब डसा के तब डसा का हाल उस पर सवार है, डसने ही वाला है कि अचानक ये बिच्छू उस बंदे के करीब पहुंच जाता है और ये बिच्छू उचक करके उसके सीने पर पहुंच जाता है और उस सांप को एक डंक मार देता है। इस बिच्छू का जहर ऐसा था कि वो सांप उसी वक्त और उसी जगह तड़प करके मर जाता है और वो बिच्छू फिर वापस उस मेंढक पर सवार हो जाता है और वो मेंढक फिर उसे वापस ले जा करके उस तालाब के किनारे पार करके उसे छोड़ देता है। और वो बिच्छू किस तरफ गया खुदा जाने और मेंढक तालाब के किस हिस्से में छुप गया खुदा जाने। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उस शख्स के पास जाकर के बैठ जाते हैं, देखते हुए खुदा की कुदरत का मुशाहिदा करते हुए हैं। ये बंदा कैसा है? नाफरमान बंदा है, शराब के
नशे में पड़ा हुआ है, मगर फिर भी रब ताला इसकी जान की हिफाजत कर रहा है, इसकी जान बचा रहा है। अगर वो सांप चाहता तो उसे मार देता, डस देता, खुदा उसको ना बचाता तो कोई मज़ायक़ा नहीं था, क्योंकि वो खुदा का नाफरमान बंदा था। नाफरमान बंदा सजा का मुस्तहिक होता है, मगर फिर भी रब ताला मेहरबान है, उसने मेहरबानी फरमाई, इसकी जान बचा ली। आप वहीं बैठ जाते हैं और कुछ देर बैठने के बाद जब वो बंदा होशियार होता है, जाग जाता है, तो आप उससे कहते हैं, अल्लाह के बंदे, क्या तुझे मालूम है, जरा उस तरफ नजर तो डाल करके दे, कितना जहरीला सांप तेरे पास पड़ा हुआ है। वो बंदा उस सांप को देख करके थर थर कांपने लग जाता है, कहता है क्या मामला है, समझ में नहीं आया। कहते हैं अगर ये सांप तुझे काट लेता तो क्या होता? अर्ज करता है, ये सांप काट लेता तो भला मैं इस नींद से जागता, मैं तो इसी नींद में दुनिया से चला गया होता, मौत के जबड़ों में मैं कहीं का कभी का छुप चुका होता, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं होता, मेरा हाल क्या है खुदा जाने, मगर मुझे रब ने जान बख्शी है। मामला क्या है? वो कहते हैं, सुन, मैं तालाब के किनारे बैठा हुआ था, एक बिच्छू आता है, मेंढक पर सवार होता है, तालाब को पार करता है, यहाँ आता है और ये सांप तेरे सीने पर सवार है, तुझे डसने वाला है, मगर वो बिच्छू सांप को काट करके सांप को मार देता है, वो वापस चला गया। हे अल्लाह के बंदे, तू नाफरमान है, तब खुदा तबारक व तआला तेरी इस कदर ख्याल फरमा रहा है और तेरा इस कदर लिहाज कर रख रहा है, तेरी जान को बचाए हुए है। क्या तेरा ये हक नहीं बनता कि तू रब ताला का फरमा बरदार बंदा हो जाए? क्या तेरा ये फर्ज नहीं बनता कि तू रब ताला के हुक्म पर चलने वाला हो जाए, गुनाहों से बचने वाला हो जाए? अफसोस की बात है, आज हमें भी गौर करने की जरूरत है। हम गुनाहगार हैं, मगर खुदा हमें रिज़्क़ दे रहा है। हम गुनाहगार हैं, खुदा हमें इज्जत की जिंदगी बख्शा हुआ है। हम गुनाहगार हैं, हमें औलाद बख्शा हुआ है। हम गुनाहगार हैं, हमें माल बख्शा हुआ है। हम खताकार हैं, हमें सरवत बख्शी हुई है। जमीन, जायदाद, अक्ल, होश, समझ सब अता फरमाया है। हर चीज को अगर हम तोलें तो एक एक नेमत ऐसी नेमत है कि सारी जिंदगी शुक्र अदा करें तब भी उसका हक अदा न होगा। मगर अफसोस की बात है कि शैतानी वसवसे इंसान के ऊपर इस कदर गालिब है कि हम गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, नाफरमानियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बंदे ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक पर हाथ दिया और कहा कि हुजूर, जिस तरह से आपने ये मामला हमें समझाया बताया है, अब इस गुनाहगार को तौबा भी करा दीजिए, अपने मुरीदों में भी शामिल कर लीजिए, नेक बनने में मेरी रहबरी फरमा दीजिए। आपके दस्ते हक पर तौबा करता है और अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। क्या आज हमारे लिए ऐसा वक्त नहीं है कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए? यकीनन हमारी जिंदगियों में बदलाव लाने की जरूरत है, गुनाहों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। मदीने मुनव्वरा का एक वाकया है कि खातून थी, बड़ी नेक आबिद और जाहिद खातून थी, बड़ी इबादत गुजारी की जिंदगी गुजारा करती थी। उसका बेटा बड़ा नाफरमान था, वो गुनाहों में दलदल में फंसा रहता था, कभी खेल कूद में, कभी नाच गानों में, कभी बाजे ताशों में उलझा हुआ करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ दूर दूर चला जाया करता था और अपने वक्त को खेल कूद में, लहव लईब में, नाफरमानियों में गुजार दिया करता था। माँ हमेशा अपने बच्चे को नसीहत करती थी, बेटा जिंदगी का ये मकसद नहीं है कि तू नाफरमान बन जा, जिंदगी का मकसद ये है कि तू खुदा का फरमाबरदार बंदा बन जा। माँ अपनी नमाजों में बच्चे के लिए दुआएं मांग रही है और बच्चे के लिए अभी कबूलियत का एक वक्त नहीं आया है, मगर अल्लाह वालों की आमद, अल्लाह वालों का कदम ऐसा होता है कि कभी कभी लोगों के दिलों की दुनिया बदल जाती है और लोग अल्लाह के रास्ते पर आने वाले हो जाते हैं। हजरत अबू आमिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदीने मुनव्वरा में उस जमाने के बड़े आलिम और जाहिद मुत्तकी बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े अजमत वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। वो तशरीफ लाते हैं मस्जिद नबवी में, वो वाज फरमाने वाले हैं, इलाके के सारे लोग नसीहत लेने के लिए जमा होने वाले हैं। उसी में से कुछ दोस्त इस बच्चे को तैयार कर लेते हैं, यहाँ चलो आज एक अल्लाह के बुजुर्ग आए हैं, अल्लाह के महबूब बंदे आए हैं, अल्लाह वाले एक बुजुर्ग आए हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनकी नसीहत के कलाम को सुन लेते हैं, कुछ देर बैठ जाते हैं। अब तक तो हम इधर उधर जाते रहे, मगर जब वो आते हैं, जब वहां पर उनका बयान होना है तो दोस्तों की बात को इनकार न कर सका, दोस्तों के साथ मिलजुल करके उस मजलिस में चला जाता है, बैठ जाता है और हजरत अबू आमिर अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बातें सुनाते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, खौफ खुदा, खशियत खुदा को समझाते हैं, जहन्नम और जन्नत के हालात को बयान करते हैं, जहन्नम की सजाओं को बताते हैं। हाल ये होता है कभी कभी किसी के लिए कोई वक्त बदलने का आ जाता है, जब ये वक्त उस बंदे के लिए बदलने का आ गया, हाल ये हुआ कि उनकी गुफ्तगू को सुनता सुनता वो होश से बेहोशी के हालम में चला गया। आखिर जब उसे कुछ होश आया तो अपनी माँ के पास आता है, कहता है अम्मी जान तुम सही कहती थी, तुम सच कहती थी, अफसोस कि मैं आपकी बात को सुन न सका, अफसोस कि मैं आपकी बात को मान न सका, मैं गुनाहों की तरफ बढ़ता रहा, मगर आज मुझे
अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है, क्या मैंने तौबा कर लिया है, क्या मेरा रब मेरी तौबा को कबूल कर लेगा, क्या अम्मी मेरी तौबा को रब कबूल कर लेगा। वो माँ जैसे उसको नसीहत दे करके रब ताला की तरफ बुलाने वाली है, वैसे ही हौसला वो हिम्मत देने वाली है। वो कहती है बेटा अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे बंदो परेशान न हो, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो, मजबूत उम्मीद जमाए रखो, रब ताला यकीनन तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तुम तौबा करोगे रब ताला यकीनन माफ फरमाएगा। बेटे को समझाती हैं, बेटा उस वक्त से दिन की दुनिया बदल चुकी है, जिंदगी गुजारने का सलीका बदल चुका है। रात भर जाग करके इबादत कर रहा है, दिन भर जाग करके इबादत कर रहा है, कुछ वक्त खाया कुछ वक्त नहीं खाया, यही हाल उसका हो रहा है। रमजानुल मुबारक आ गया, रमजानुल मुबारक के महीने में भी उसी तरीके से वो इबादत और रियाजत में मशगूल रहा। हाल ये हुआ कि कोई दिन उसका आंख से आंसू बहना रुका नहीं, कोई रात उसकी आंख से आंसू बहने रुके नहीं, वो हर हाल में रोता रहा, खुदा की बारगाह में माफी का तलबगार होता रहा। एक वक्त पर आखिर अपने बीमारी का आलम उस पर आ गया, कमजोरी नकाहत छा गई, वो करीबुल मर्ग हो गया। माँ को बुलाता है, माँ उसे अपने मांडी पर उसका सर रखती हैं, सर पर हाथ फेरती हैं, तसल्ली देती हैं, कहती हैं बेटा ये क्या हाल तूने बना रखा है। अर्ज करता है अम्मी यही हाल की तरफ तो आप बुलाया करती थी, आज परेशान हो रही हैं, परेशान न हो। अम्मी जान सुने जरा, मेरे गुनाह इस लायक नहीं कि मैं बख्शा जाऊं, मेरी नाफरमानियां इस लायक नहीं कि मैं बख्शा जाऊं, क्या मेरा रब मुझ पर मेहरबानी फरमा देगा, क्या मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा। अम्मी जान क्या मैं रब ताला की बारगाह में इज्जत के साथ उठाया जाऊंगा, रुसवाई और जिल्लत से बचाया जाऊंगा। जब माँ के सामने बेटा तड़प करके खुदा का खौफ अपने दिल में बसा करके आंख से आंसू बहाता है, वो माँ तड़प जाती है, रब ताला की बारगाह में अपनी झोली को फैला देती है, अर्ज करती है परवरदिगार मेरे बेटे ने तेरी बारगाह में तौबा की है, इसकी तौबा को कबूल फरमा ले। और बेटा अपनी माँ से कहता अम्मी अल्लाह ताला की बारगाह में मुझे इज्जत मिलनी है, तो मुझे यहाँ पर जिल्लत क्या होती है वो समझना है, और मेरे हाल को तुम इस कदर करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा दे, मुझे जमीन पर लेटा देना और मेरे गले पर मेरे चेहरे पर अपना कदम रखना और एक हाथ को मेरे पकड़ के खींचते हुए कहना देख अल्लाह के नाफरमान का हाल यही होता है, यही उसकी जिल्लत होती है। माँ बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खड़े हो जाती है, बेटे को जमीन पर लेटा देती है, चेहरे पर आंख से आंसू बहाते हुए कदम रख करके हाथ खींच करके कहती है कि सुन खुदा का जो नाफरमान होता है वो इसी जिल्लत का हकदार होता है। आवाज आती है ऐ अल्लाह की बंदी मेरे इस बंदे के चेहरे से कदम हटा ले, खुदा ने इसको रहमत के दरवाजे खोल करके रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हाल में दुनिया से गुजर जाता है, वो बंदे का इंतकाल हो जाता है, जब उसे मदीने के बाहर माँ ने तैयार नहला धोला करके कफन पहना करके गली के बाहर रख दिया, कहा अल्लाह के बंदो आओ एक अल्लाह के गुनहगार बंदे की नमाज पढ़ दो। तो हाल ये था कि मदीने का कोई फर्द ऐसा नहीं कि जिसकी आंख से आंसू न बहे हो, मदीने का कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसकी आंख से आंसू न बहे हो। वो हाल ऐसा गुजरा कि देखने वालों ने देखा कि इतना जम्मे गफीर, इतनी कसरत से लोगों का मजमा हो गया कि हैरत से जमाना देखता रह गया। अजीजान मोहतरम, कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने वाले के लिए इज्जत अदा होती है कि मरने के बाद भी दुनिया उसको इज्जत वाला जानती है, मरने के बाद भी दुनिया उसके अखलाक व किरदार को याद करती है। आखिर हमारी जिंदगी और हमारे अखलाक व किरदार का क्या हाल है, हमें अपना अखलाक व किरदार का मुहासबा करना है, हमें अपने अखलाक व किरदार को देखना है, हमने क्या जिंदगी गुजारी है, किस तरीके की हमने जिंदगी गुजारी है। क्या हमें रब ताला का खौफ नहीं होता, क्या हमें रब ताला की बारगाह में हाजिरी की जब रब ताला की बारगाह में हाजिरी की फिक्र है। हजरत इमाम जौजी फरमाते हैं ऐ इंसान, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने हाल का मुहासबा कर, अपना लिहाज कर, अपना देख क्या हाल तेरा है। अगर तू मौत और कब्र के लिए तैयार है तो बेफिक्र होकर के उसी हाल में जिंदगी गुजार दे जिस हाल में है, और अगर तू अपने मौत के लिए तैयार नहीं है और कब्र के लिए तैयार नहीं है तो अपने हाल को बदल दे, तौबा कर, रब ताला की बारगाह में पलट जा कि रब ताला की रहमत से तुझे संभाल लिया जाएगा, तुझे नेक बनने का मौका मिल जाएगा। और अगर तू उसी हाल में अपना वक्त गुजार देता है तो फिर तेरे पास क्या कुछ वक्त बाकी नहीं बचने वाला है। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ए अल्लाह के बंदे, तू अगर नमाज की इज्जत नहीं कर पाएगा, तू अगर नमाज का एहतराम नहीं कर पाएगा तो फिर कौन सी चीज तेरे लिए इज्जत वाली होगी, कौन सी चीज तेरे लिए एहतराम वाली होगी। अफसोस की बात है कि आज हमारी जिंदगी का हमने जिंदगी गुजारने का सलीका कैसा बनाया है। निगाहों को हराम देखने वाला हमने बना लिया है, जबान से हराम बोलने और हराम खाने वाला हमने बना लिया
है, हमारे पेट की जो हम जो उसको भूख मिटा रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज को हमने छोड़ दिया है। हमारे बदन पर हमने जो लिबास पहनना है, उस लिबास के लिए हमें कैसा लिहाज होना है, उसको हमने फरामोश कर दिया है। हमारी निगाहों को हमने बचा नहीं सके और हमारे अखलाक और किरदार को बचा नहीं सके। आज हमारे अखलाक और किरदार की बेकायदगी ही की वजह है कि आज हम रुसवाई और जिल्लत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम अपने अखलाक और किरदार को अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार से आपके अखलाक और किरदार से मुनव्वर बना ले और आरास्ता कर ले, तो यकीनन हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी की जिंदगी मिलने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही चलना ही हमारी कामयाबी है। खुदा का खौफ अपने दिल में बसाना ही हमारी कामयाबी है। अगर हमने खुदा का खौफ नहीं बसाया है तो हमें क्या मालूम है कि कल क़यामत के दिन क्या हाल होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को कैसे दहकाए हुए है। जहन्नम का हाल यह है कि दहकाया गया तो आग सुर्ख हो गई, और दहकाया गया तो आग जो है सफेद हो गई, और दहकाया गया तो आग सियाह हो चुकी है। और वो जहन्नम की जो आग है, दुनिया में जो आग है वो 70 गुना जहन्नम की आग इससे ज्यादा जलाने वाली है। हाल क्या होगा? क़यामत का दिन होगा। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन का क्या हाल होगा? क़यामत के दिन कैसा होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा किराम के दरमियान जलवा फरमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, किस चीज ने आपको हंसाया, किस चीज ने आपको खुश कर दिया, जरा वो हमें भी तो बताएं ताकि हमें उसकी लज्जत मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गोया कि मैं क़यामत के मंजर का मुशाहिदा कर रहा हूँ, और जान लो क़यामत का दिन बड़ा अजीम दिन है। वो दिन लयौमुन अज़ीमुन, फरमाया बड़ा अजीम दिन है, बड़ा भयानक दिन है। उस दिन की हौलनाकी का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हिसाब किताब हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के हिसाब किताब के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बंदा हाजिर है, इंसाफ तलब कर रहा है, तराजू कायम हो चुका है, नामे अमाल तुल रहे हैं, बदले चुकाए जा रहे हैं, जिसका जो हक है वो हक अदा किया जा रहा है। हुकूकुल इबाद, जो बंदे के हुकूक होते हैं, ये बड़े भयानक मामलात होते हैं। बंदे के हुकूक को अगर मार देंगे क़यामत में, जब तक के उसका बदला न चुकाया जाएगा जन्नत में जा नहीं सकते हैं। इसको याद रखें। हुकूकुल्लाह, जो अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह माफ फरमा सकता है, मेहरबान है, मगर हुकूकुल इबाद, जो बंदों के हुकूक हैं, जिसका जो हक है उसे वो बराबर मिलने वाला है। हत्ता के रिवायतों में आता है कि जो बकरी के सींग थे, उस बकरी ने जिस बकरी को सींग नहीं थे उसको सींग से अगर दुनिया में मारी है, तो क़यामत के दिन जिसके सींग नहीं उसे सींग अता किए जाएंगे, और जिसके सींग थे उसके सींग को निकाल दिया जाएगा। जिसके दुनिया में जिस बकरी से जिसने मार खाया है, वो क़यामत में उस बकरी को मार के उसका बदला पूरा करेगी। जब जानवरों को बदला देने वाला है, जिन जानवरों का बदला अता किया जाएगा, चुकाया जाएगा, तो इंसानों का बदला कैसे रह जाएगा? यकीनन वो बड़ा भयानक दिन है, जब क़यामत के दिन वो बंदा रब ताला की बारगाह में कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरे पास गुनाह ही गुनाह है, कुछ नहीं है। इस बंदे ने मुझ पर हक गलती की है, मुझ पर जुल्म किया है, मौला उसका बदला मुझे दिला। रब ताला फरमाएगा, क्या बदला तुम उससे चाहते हो? वो कहेगा, उसकी नेकियों को निकाल करके मेरे नामे अमाल में डाल दो। पहले ही नेकियां कम हैं, पहले ही हालत ऐसी है, और अगर कल क़यामत में हमसे दुनिया में किसी से हक तलफी हो गई है, किसी पर जुल्म ज़्यादती हो गई है, वो क़यामत में नेकियां मांग ले तो क्या हाल होगा? कहाँ हमारा ठिकाना होगा? जुल्म करने से बचें, किसी के हक को मारने से बचें, किसी के साथ हक तलफी करने से बचें। कल क़यामत में उसका बड़ा भयानक बदला चुकाना होगा। हमारी नेकियां ले ली जाएंगी, मगर खुदा मेहरबानी फरमाने वाला है, मेहरबानी भी फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे से रब ताला ने पूछा कि क्या बदला चाहते हो? वो बंदा कहता है कि रब ताला, मुझे उसकी नेकियां चाहिए। रब ताला फरमाता है कि सुनो, देखो, सर उठा करके जन्नत की तरफ। जब जन्नत की तरफ सर उठा करके वो बंदा देखता है तो ऐसा अजीम शान महल दिखता है उसको कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। उस अजीम शान महल के लिए जब उस बंदे ने हैरत से देखा, कहा, रब ताला ये किसके लिए है? रब ताला फरमाता है, ये उस बंदे के लिए है जो मुझसे सौदा कर ले। वो बंदा कहता है, रब ताला क्या सौदा करना है? वो कहता है कि तेरे भाई के नामे आमाल में एक भी नेकी नहीं है, एक भी नेकी नहीं है।
मगर तेरे साथ उससे ज्यादती का मामला हो चुका है, तू उसका बदला चाह रहा है, तू अगर उसे माफ कर देगा तो इस माफी के बदले में तुझे वो जन्नत का महल अता फरमा दूंगा। रब ताला की बारगाह में वो बंदा तड़प करके अर्ज करता है, रब ताला मैंने उसे माफ कर दिया, मैंने उसे माफ कर दिया, मैंने उसे माफ कर दिया। रब ताला फरमाता है मेरे बंदे तू उसका हाथ पकड़ और जन्नत के उस अजीम शान महल में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही चलता है कि रब ताला की बारगाह में हिसाब होने वाला है। वो हिसाब अगर रब ताला मेहरबानी से दूसरे सौदे में बदल के माफ फरमा दे तो उसका करम है, मगर अगर माफी ना मिले और उस वक्त पर हक को तलब कर लिया जाए तो क्या हाल होगा? हक अदा किया जाएगा। अगर नेकियां से नहीं है तो इसके गुनाहों को निकाल करके उसमें डाल दिया जाएगा, उसके गुनाहों में बढ़ा दिया जाएगा। ये मामला हमारे सामने खुला है, रसूलुल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया है। क़यामत के दिन से डरना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि क्या आज हम क़यामत के दिन से डर रहे हैं, अपने अखलाक को, किरदार को संवार रहे हैं? आज हमारा हाल क्या है? न हमें किसी हराम का डर है, हराम से बचने की ख्वाहिश और आरज़ू है। हम तो खुले तौर पर बेहयाई और बेशर्मी के साथ गुनाह की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। गुनाह करने के बाद नदामत भी हमें नहीं है, गुनाह करने के बाद अफसोस भी हमें सादे नहीं होता, और कल जन्नत की नेमतों को हासिल करने की हमें फिक्र नहीं होती है। हजरत मालिक इब्न दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि आप बसरा की गलियों में से एक मर्तबा गुजर रहे थे, एक बहुत बड़े मालदार शख्स को अपना घर बनाते हुए देखते हैं। आपने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा देखते ही आपने अपने मुरीदों से कहा सुनो ये अल्लाह का नेक बंदा नजर आता है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके चेहरे को हुस्न जमाल और नूरानियत और जाज़ियत अता फरमाई है। मैं डरता हूँ कि कल क़यामत में ये बंदा जहन्नुम में जलाया जाए। चलो इसे नसीहत करके देखते हैं, शायद ये नसीहत को सुन ले हमारी, कुछ एक सौदा उससे करके देखते हैं, वो सौदा हमारा सुन ले तो कल क़यामत में जहन्नुम में जलाए जाने से बचा लिया जाएगा। हजरत मालिक इब्न दीनार उसके पास जाते हैं मिलने के लिए, सलाम करते हैं, वो सलाम का जवाब देता है, बैठा देता है, उसको पता नहीं कि कौन आने वाला है। जब उसे पता चलता है कि वक्त के बड़े जलीलुल कद्र आलिम रब्बानी वली कामिल हजरत मालिक इब्न दीनार यहाँ पर जलवा फरमा है, वो खड़े हो जाता है, अदब एहतराम के साथ उनके साथ पेश आता है, अर्ज करता हुजूर कोई हाजत और जरूरत है तो आप मेरे गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाए हैं, आप इजाजत फरमा दे, हुक्म फरमा दे, किसी को भेज देते, मैं आपकी खिदमत में खुद हाजिर हो जाता। वो अर्ज करते नहीं, ना मेरी कोई हाजत है, ना मेरी कोई जरूरत है, हाँ ये है कि मैं तुम्हें एक सौदा करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, चाहो तो वो सौदा कबूल कर लो, तुम्हारा फायदा है, ना कबूल करो तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। वो अर्ज करते हैं तो अर्ज करता हुजूर को क्या सौदा है? आप फरमाते हैं ये घर वो जो महल तुम बना रहे हो, इस महल के बनाने में तुमने कितना खर्च करने का इरादा कर लिया है? अर्ज करता हुजूर मैं 1 लाख सोने के सिक्के खर्च करने का इरादा कर लिया हूँ, इस पर मैंने 1 लाख सोने के सिक्कों को जमा कर लिया है ताकि इस महल को आलीशान बनाया जाए, और तमाम खिदमत गुजारों को करने वालों को मैं जमा कर लिया हूँ। हजरत फरमाते हैं सुनो ये महल के छत के अंदर भी ये सारे ऐब हैं, इसकी दीवारों में ये सारे ऐब हैं, ये बगैर पिल्लर के कायम नहीं हो सकता है, ये वक्त के साथ साथ खत्म होने वाला है, फना होने वाला है, जलजले से गिर जाने वाला है, और वक्त की आंधी वो तूफान से असरअंदाज होने वाला है। ये तो सरापा ऐब वाला महल है। क्या तुम्हें मालूम है कि एक महल अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में बंदों को अता फरमाने वाला है, ना उसमें कोई सुकून होता है, ना उसमें कोई बेरंगी होती है, ना उसमें कोई ऐब होता है, ऐसा आला वो आला तरीन होता है कि जिसके एक एक खूबसूरती को तुम दुनिया में दुनिया भर की जिंदगी जी करके भी तसव्वुर नहीं कर सकते। वो महल खुदा तबारक व तआला तुम्हें अता फरमा देगा। अगर तुम चाहो तो इस दौलत के बदले मैं तुम्हें वो जन्नत का महल बेचना चाहता हूँ, चाहो तो तुम जन्नत का महल खरीद लो और ये दौलत को अल्लाह की राह में गरीबों में कुर्बा बांट करके तुम अल्लाह की बारगाह में हकदार रहमत बन जाओ। वो बंदा कहता हुजूर मुझे 1 रात का मौका दे दीजिए, मैं 1 रात तक का मौका दे दीजिए, मैं सुबह फजर के बाद आपसे अर्ज करूंगा, आप सुबह मेरे पास तशरीफ लाइए। वो बंदा भी बड़ा होशियार और दाना था, उसने ये वक्त लिया है तो मैं समझता हूँ कि वक्त ने उसने इसका भी फायदा हासिल कर लिया है। और हजरत मालिक इब्न दीनार वहां से उठ करके चले जाते हैं, अपनी खानकाह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर रात भर इबादत कर रहे हैं और रात भर दस्ते दुआ को बुलंद करके दुआ कर रहे हैं, मालिक ये तेरे बंदे को मैंने तेरी रहमत के दरवाजे पर लाया हूँ, परवरदिगार मैं इसको तेरी रहमत के दरवाजे तक खींच लाया हूँ, अब हिदायत और तौफीक तू अता फरमा देना, अपनी जन्नत का इन्हें इस बंदे को हकदार बना दे, रब ताला इसे दुनिया से
रग़बती और आखिरत का तलबगार बना दे। दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आपके मुरीदीन कहते हैं हत्ता के तहज्जुद का वक्त आ गया, उस वक्त रात में गिरिया करके रब ताला की बारगाह में दुआ की, आंसू बहा करके रब ताला की बारगाह में दुआ की। सुबह फजर की नमाज पढ़ा और उस बंदे से मुलाकात के लिए चले गए। वो बंदा उन्हीं के इंतजार में बैठा हुआ था। सोने के जो सिक्कों की थैलियां उसने जमा करके रखे थे घर बनाने के लिए, वो 1 लाख के सोने के सिक्के लेकर के सामने रख दिया। अर्ज करता हुजूर ये तो सब मैं आपको दे दूंगा, मैं सौदा करने को तैयार हूँ, मगर मुझे जमानतनामा भी तो लिख करके दे दीजिए, जमान भी तो लिख करके दे दीजिए, सिर्फ जबानी सौदा नहीं, मुझे लिखत में सौदा अता फरमा दीजिए। अल्लाह वालों से रहमतों को लेने का सलीका भी देखिए किस तरीके से उन्होंने सीखा। उन्होंने कहा कि हुजूर लिख करके दे दीजिए। हजरत ने कहा लाओ मैं लिख करके दे देता हूँ। वो कलम मंगाया गया, कागज मंगाया गया, उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे मालिक इब्ने दीनार की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर भरोसा करते हुए ये सौदा किया जाता है कि दुनिया के इस महल के बदले फलां बिन फलां को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला अफजल वाला याकूत का महल अता फरमाए। ये मेरा है, मेरा जमानतनामा है। उससे ज्यादा खुदा देना चाहे तो वह खुदा की मर्जी है। इस पर जामिन ये बंदा मालिक इब्ने दीनार है, आपने दस्तखत कर दिया। यानी गोया कि वो बंदा चाह रहा हुजूर मैं सौदा तो कर रहा हूँ, कल क़यामत में मैं रब ताला की बारगाह में जवाब देने की ताकत नहीं रखता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, वहाँ तलब करने की ताकत नहीं रखता हूँ, वहाँ मैं बेसहारा रहूंगा। किसी दस्तगीरी करने वाले दस्तगीर की मुझे हाजत होगी, कोई हाथ थाम करके रहमत दिलाने वाले सहारे की मुझे हाजत होगी। रब ताला की बारगाह में अपनी तलब को याद करके मुझे अता दिलाने वाले की जरूरत होगी। उस वक्त के सहारे के लिए मुझे आपकी तहरीर चाहिए। हजरत ने लिख दिया, वो सोने के सिक्के हजरत को दे दिया। हजरत ने महल से बाहर निकला तो सारे गरीबों को, तमाम जो हकदार थे उनको बांट दिया। कुछ भी उसमें से एक कौड़ी अपने लिए उन्होंने बचा के न रखा, सब रब ताला के राह में कुर्बान कर दिया, बांट दिया और चले गए, इबादत करने लगे। एक वक्त गुजरने लगा, 1 दिन 2 दिन 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद आप एक मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आप महराब के पास पहुंच जाते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद आपकी निगाहों के सामने एक पेपर पड़ा हुआ नजर आता है। आप उस कागज को उठा करके देखते हैं, उस कागज पर पीछे लिखा हुआ था कि उस कागज पर जो जमानतनामा आपने लिखा था, जिसे बैनामा भी कहते हैं, उसको आपने लिखा था, आपके तहरीर, आपके दस्तखत भी उस पर मौजूद है। पीछे पलट करके देखते हैं तो उस पर एक ऐलान भी लिखा हुआ है, मेरे बंदे मालिक इब्ने दीनार के इस सौदे को हमने 70 गुना बढ़ करके फलां बंदे को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म। पेपर को लेकर के उस इंसान के घर की तरफ आप दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। जा करके देखते हैं तो क्या हाल है, भीड़ जमी हुई है, लोग एक दूसरे को ताज़ियत दे रहे हैं, एक दूसरे को सब्र की तलकीन कर रहे हैं। ये पूछते हैं क्या मामला हुआ। उसके खास खादिम जो हजरत को पहचानते थे उन्होंने कहा हुजूर जिससे आपने सौदा किया वो बंदा इंतकाल कर चुका है, दुनिया से गुजर चुका है। आप पूछते कौन उसको नहलाने वाला है, उसको मेरे पास लेकर के आओ। जब उसको नहलाने वाला कफनाने वाला करीब आ जाता है, आप उससे पूछते हैं कि बताओ जरा क्या हाल था, जब तुमने उसको नहलाया क्या हाल था, कफनाया क्या हाल था, आखिरी वक्त पर कुछ तुमने उससे गुफ्तगू की, बातचीत की। वो कहता है कि हाँ, जब उसके आखिरी वक्त आया उसने मुझे बुलाया, कहा कि मुझे नहलाने धुलाने के बाद कफनाने के वक्त मेरे सीने और कफन के दरमियान इस कागज को रख, एक कागज उसने मुझे दिया, वो कागज को उसने कहा कि मेरे सीने कफन के अंदर मेरे सीने पर कागज को रख देना। तो मैं उसके कागज को उसी तरीके से रखा और कफनाया, दफनाया और दफना दिया गया है। हजरत ने वो कागज दिखा करके बताया क्या वही ये कागज है। वो बंदा चमक करके चौंक करके उसे पकड़ लेता है और देख करके कहता है हाँ हाँ यही वो कागज है जिसको मैंने उसके कफन में उसके सीने पर रखा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार को पता चल जाता है कि मरने वाला भी सच्चा है, देने वाला भी सच्चा है और दिलाने वाले को अल्लाह ताला ने दिलाने वाला बनाया है। ऐसी रहमत जो उनकी निगाहों के सामने आ गई, उसी वक्त बना सजदा रेज हो जाते हैं, अर्ज करते हैं मालिक मौला तू मुझ गुनहगार के सौदे को कबूल फरमा लिया, मेरी लाज रखा है मौला, तूने तेरे तो बहुत बड़ा है, करम वाला है, एहसान करने वाला है, रहम करने वाला है। लोग
लोग ने हजरत मालिक इब्न दिनार को देखा तो दौड़ते हुए आए, कहा हुजूर हमें भी जन्नत का महल दिला दीजिए, हमें भी जन्नत का महल दिला दीजिए। लाखों दिरहम और दिनार लेकर के आए। हजरत कहते नहीं, कान अमा कान, जो होना था वो हो चुका, मेरी ताकत नहीं कि मैं ये कर सकूं, वो तो रब ताला की मेहरबानी है कि मेरे कौल को उसने पूरा फरमा दिया, मेरी बात को उसने पूरा फरमा दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया की ये शान है कि रब ताला की बारगाह से जन्नत के महल दिला सकते हैं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता का क्या हाल होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने अखलाक और किरदार को संवारें, रब ताला की बारगाह में हाजिर होने वाले वक्त को फरामोश न करें। हमें दुनिया से जाना जरूर है, मौत से गुजर के जाना जरूर है। हमें देखने की जरूरत है कि हमने अब तक की जिंदगी गुजारी तो कैसे गुजारी है, नमाजों को कितना छोड़ा है, रोजों को कितना छोड़ा है, इबादतों को कितना छोड़ा है, अखलाक और किरदार से हमने किस कदर बेराह रवि अपना ली है, किस कदर हम दूर हो चुके हैं। याद रखें मोमिन के अखलाक कैसे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाएं, उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे। क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारी जिंदगी गुजारने के सलीके को हमने बताया, अपनाया? नहीं, आज हमारा हाल ऐसा है कि हम एक दूसरे को तकलीफ दिए बगैर चैन नहीं पाते हैं। जब तक कि हम किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी की दिलाजारी नहीं करते, हमारी जिंदगी जो है इस तरीके की हो गई है कि हमें कोई जिंदगी का सुकून नहीं मिलता। अफसोस है ऐसी जिंदगी पर जो हकीकत में जहन्नम की जिंदगी को मोल रही है। और जहन्नम का हाल क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका में, अहादीस मुबारका में ये रिवायतों में आता है कि जहन्नम का हाल ऐसा होगा, जहन्नम के अंदर अजब अजब तरह तरह के अजाब होंगे। जहन्नम में एक तालाब भी ऐसा होगा जो पानी की तरह बहने वाला, लोहे और पीतल का खवलता हुआ पानी की तरह बना हुआ उसका एक पांच तालाब होगा। उससे इंसान को गुजरने की सजा दी जाएगी, रब ताला की बारगाह से उसके लिए सजा मुतय्यन हो जाएगी। हाल क्या होगा? तालाब के इस किनारे पर उसे गोता लगाना है, तालाब के उस किनारे पर उसे बाहर निकलना है। और आप अंदाजा लगाएं, लोहा पिघल करके बह रहा है, तांबा पिघल करके बह रहा है, उस वक्त पर हाल क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? अंदाजा लगाएं, अंदाजे की जरूरत है। बंदा जब बाहर निकलेगा तो उसके बदन से उसका गोश्त और उसकी जिल्दें, उसके चमड़ी इस कदर पिघल करके गिरेगी जैसे कांधे से चादर फिसल करके जमीन पर गिर जाती है। ये इस तरह का सख्त तरीन अजाब होगा। क्या हमें उस अजाब के सामने करने की हिम्मत है? क्या हमें उस अजाब का मुकाबला करने की हिम्मत है? कसम खुदा की हमारे पास वो हिम्मत ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है। बस हमारे लिए जरूरी है कि रब ताला की रहमत को हासिल करें, हमारे लिए जरूरी है कि रब ताला की बारगाह में अपनी मग़फ़िरत को हासिल करें। रब ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला हूँ। आज रब ताला ने हमें ये मौका बख्शा है, जिंदगी बख्शी है। ये जिंदगी भी है, जबान भी है, फिक्र भी है, सोच भी है। तौबा का दरवाजा भी खुला है, क़यामत से पहले तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होने लगी हैं, ज़लज़ले आने शुरू हो चुके हैं और अब बड़ी बड़ी निशानियों की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी निशानियां तो जाहिर हो चुकी, अब बड़ी बड़ी निशानियां जो है वो जाहिर होने चली हैं और जाहिर हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला का क़हर व ग़ज़ब का सामना होगा क़यामत का दिन, उसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उस दिन की रुसवाई से, उस दिन की रुसवाई से अगर अपने आप को बचाना है तो आज तौबा करके जिंदगी को रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर गुजारने का इरादा बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कहा गया सुना गया, कहने में सुनने में जो गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए, जो हक़ व सही कहा गया हमारे सीनों में महफूज फरमाए, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें रसूलुल्लाह के सच्चे तरीके शरीयत पर, इस्लाम पर चलने जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। हम वादा करते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम शरीअत मुतहरा पर पाबंद रहेंगे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत अपने अपने वक्तों पर हस्बे हैसियत, हस्बे कुदरत अदा करते रहेंगे। गुनाहों से बचते रहेंगे। तबलीगी वहाबी
دیوبندی، رافضی، شیعہ، قادیانی، غیر مقلد ہر باطل فرقے سے دور رہیں گے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ کے اولاد، احفاد، اخلاق کل اولیاء سے عقیدت، محبت، احترام قائم رکھیں گے۔ میں تمہارے درمیان واسطہ و وسیلہ ہوں، تمہارے پیر حقیقی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے آبائی سلسلے عالیہ، قادریہ، ذہبیہ، جمالیہ کے ذریعے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے مریدی میں داخل کرتے ہوئے ان کے دست کرم میں تمہارے ہاتھوں کو دے دیا۔ کیا تم نے اس کو قبول کر لیا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما نکث علی نفسہ ومن اوفى بعهده اللہ فسيؤتيه اجرا عظیما۔ الفاتحہ۔